Hey guys, good evening. How are you? Welcome to your own YouTube channel Exploring Education. In this video, we are going to have a discussion about the industrial policy of Indian economy. That means since last two video we have making a discussion about the what was the aspect of industrial sector in respect to the Indian economy, and we have already done it in first chapter Indian economy on the eve of independence. Now we are going through the detailed study of every sector. So moving ahead, talking about the word industrial policy. First of all, when we are talking about the word industrial policy, I need to understand what is the meaning of policy. What do you mean by the word policy? It has different meaning, different definition depending upon the nature of economy, depending upon the political scenario of any particular country. वो डिसाइड करते हैं कि उनके यहाँ पे पॉलिसी की डेफिनेशन क्या होगी. बट वी आर talking about the Indian economy, that means we have to understand the definition of policy in respect to the Indian economy. Now what do you mean by the policy in respect to the Indian economy? अगर मैं पॉलिसी की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली इट इंक्लूड्स रूल, रेगुलेशन, प्रोग्राम, पॉलिसीज और प्रोसीजर. रूल, रेगुलेशन, प्रोग्राम, पॉलिसी और प्रोसीजर विच इज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट और लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप, control and regulate any particular sector of the economy in respect to Indian economy, whether it is industrial sector, territory sector और agriculture sector. यानी किसी इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशन बनाए जाते हैं, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाए जाते हैं और प्रोसीजर अप्लाई किए जाते हैं, प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, इन सभी काम को करने के पीछे उस गवर्नमेंट का जो मेन एस्पेक्ट है, मेन जो टारगेट है, वो है किसी पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप करना, उसको रेगुलेट करना और उसको कंट्रोल करना. ठीक है, तो इन सब का एक जो मिक्सअप बनता है उसी को मैं नाम क्या देता हूं, पॉलिसी. अब अगर बात करें इंडिया के रिगार्डिंग तो यहां थोड़ा सा डेफिनेशन पॉलिसी के एक डिटेल एस्पेक्ट में कंसिडर करता हूं. डिटेल एस्पेक्ट का मतलब यहां पे पॉलिसी के अंदर जो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है. यहाँ पे अगर बात करूँ मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई के हैंड ओवर की जाती है अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक रेस्पेक्ट में. और फिजिकल पॉलिसी जो रिलेटेड होती है किससे, गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है. साथ साथ लेबर के जो एस्पेक्ट हैं, उनके राइट्स की अगर बात करें उनको भी कंसिडर किया जाता है. और साथ साथ जो फॉरेन कैपिटल है या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको किस व्यू में देखा जाएगा, ऑल दीज पॉइंट ऑल्सो इंक्लूड इन द पॉलिसी. क्लियर है चीज? तो आई होप डेफिनेशन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा. अब बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच इज so far adopted by the government or so far implemented by the government for the development of industrial sector of Indian economy. Total 5 policies so far implemented by the government for the development of industrial sector. Mainly we include first industrial policy which was adopted by government in 1948, the second one 1956, and it is also known industrial policy resolution. Last one is 1991, which is also known as new industrial policy when we are talking about the policy which is adopted by the government in respect to the Indian economy. तो मेनली इनके बीच में दो पॉलिसीज और अडॉप्टेड की गई थी जो 90, 70 और 80 के बीच में अडॉप्ट की गई थी. उनके इंपैक्ट एग्जाम पढ़ने से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेनली मुझे इन तीनों को कंसिडर करना है. ठीक है, तो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया which is adopted by the government in 1948, and this was the first policy since India's independent. Now what is the silent feature of first industrial policy of 1948? The first one is classification of industries. This is the very important or vital decision which is made by the government regarding the classification of industries. बहुत ज़रूरी हो जाता है डेवलपमेंट की. जब आप बात करते हैं तो डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है उसको केवल किसी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने से ही नहीं होगा, उसका कंट्रोल, उसका रेगुलेशन, उसके डेवलपमेंट की पॉलिसीज, ये सब आपको कंट्रोल करनी है. और डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उनके ऊपर आपका कंट्रोल मैक्सिमम रहे. ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया गया इंडस्ट्री का. सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर. एक लाइन में खत्म करते हैं. पूरा कंट्रोल जिसके ऊपर गवर्नमेंट का रहता है या जिसके अंदर 100% कैपिटल, 100% इन्वेस्टमेंट किसका होता है, गवर्नमेंट का. एनी इंडस्ट्री विच इज फुल्ली ऑन्ड बाय द government known as public sector, irrespective of the fact 100% investment or 100% capital of that particular industry. It is known as public sector industries. In India, mainly 3 according to industrial policy of 1948, which includes weapons,
एमिनेशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। द सेकेंड वन इज पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर का मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये मुझे पता था कि विदाउट द एडोकेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव द डेवलपमेंट और ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट। दैट्स वाई आई इन्वाइटेड द प्राइवेट सेक्टर टू कम टुगेदर एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ क्या था कि प्राइवेट सेक्टर क्या था, इनके साथ गवर्नमेंट ने टाई अप रखा और यहाँ पे मेनली जो कंसिडरेशन किया, यहाँ पे इंक्लूड किया 6 मेन इंडस्ट्रीज जो थी। ठीक है, पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर का मतलब यहाँ पे टोटल 6 इंडस्ट्रीज को रखा गया इनिशियल स्टेज पे अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। और इन 6 इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की प्रोग्रेस को अप टू 10 ईयर हम एनालाइज करते हैं। और अगर गवर्नमेंट आफ्टर द एनालाइजेशन ऑफ 10 years performance, if government is not satisfied regarding the working style or regarding the process of that particular industry, तो उस केस में गवर्नमेंट जो नेसेसरी एडवोकेट स्टेप्स हैं वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए लेती है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर। कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का मतलब यहाँ पे टोटल कितनी इंडस्ट्री थी अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948, टोटल मिला के 18 इंडस्ट्रीज को यहाँ पे रखा। यहां कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है कि यहां एक तरह से पूरा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का। जो भी डिसीजन होंगे रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिट, कहां एस्टैब्लिश करना है, कौन से एरिया में करना है, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ करना है, ये सारे के सारे डिसीजन कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत कौन लेता था, गवर्नमेंट। यहां पे टोटली कितनी इंडस्ट्री थी, 18 इंडस्ट्री थी और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उनको क्या करती रहती थी, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको रिकॉल करती रहती थी। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब क्या था कि इनके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे बसती हैं उन सबको हैंड ओवर किया गया फ्री हैंड प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेटिव सेक्टर को। और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या करती थी, इनके ऊपर एक चेकआउट लगातार करती रहती थी, इनको चेक इन करती रहती थी। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इनका जो वर्किंग स्टाइल है, जो स्टैंडर्ड इन्होंने फिक्स किए थे, जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे नहीं। ठीक है, तो ये दीज आर द क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री विच इज द फर्स्ट साइलेंट फीचर ऑफ industrial policy of 1948. Now talking about the next silent feature, small and cottage industry. In previous video we have already made a discussion about the small and cottage industry. Cottage industry means any industry which is adopted by the member of any family. Mainly it includes agriculture industries. Small scale industry, it is very important aspect as well as the development of Indian economy is concerned. In previous video we have already made a discussion about the small scale industry. Initial stage 5 lakh requirement which can be maximum about 2 crore, and when we are talking about the latest information of small scale industry, there are 3 classifications, small, micro and medium, depending upon the capital of investment up to 5 crore, 5 to 75 crore, then उसके बाद 75 to 250 crore. These are the bases which is adopted by the government for the classification of industry in India when we are talking about the small scale industries. The second one is employer and employer relation. एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैं मेक श्योर करना चाहता था कि जो एम्प्लॉय हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, या किसी भी एम्प्लॉयर को ऐसा राइट मैं नहीं दूंगा कि वो अपने एम्प्लॉय का क्या कर सके, एक्सप्लॉयटेशन कर सके, ताकि अगर ये कैपेबल है एक्सप्लॉयटेशन करने में तो फिर इसका 100% आउटपुट आपको नहीं मिलेगा और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो ऐसे रूल्स अडॉप्ट किए गए, ऐसी पॉलिसी बनाई गई ताकि एम्प्लॉय के रिगार्डिंग आप सोशल जस्टिस का ध्यान रख सको। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल ओवर फॉरेन कैपिटल। अब फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या था कि गवर्नमेंट ने रखा कि फॉरेन कैपिटल के प्रति जो पब्लिक है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस दृष्टि से इनको देखते हैं, क्या उसको एक्सेप्टेबल है, पब्लिक इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि डिसीजन आप वो लें जिनके समर्थन में पब्लिक आपके साथ रहे। अगर आप डिसीजन पब्लिक के अगेंस्ट लेंगे या जिन डिसीजन के रिगार्डिंग पब्लिक आपके साथ नहीं है, पब्लिक रेस्पॉन्ड नहीं करी, वो उस डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या कर सकते हैं, सरकार के एक्सप्लॉयटेशन या उसके डाउनफॉल का रीजन बन सकते हैं। क्लियर है चीज। लास्ट अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने बात की थी 1947 फर्स्ट चैप्टर में और वहां पे देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं थी। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये भी मेक श्योर किया गया कि यहाँ पे आप सबसे पहले तो रोड्स की आप बात कर लो, उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की आप बात कर लो, जहाँ जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनको हम कंसिडर कर दें, और उसके बाद हम कम्युनिकेशन सेक्टर की बात कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही था कि रोड, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सेक्टर, इनको कैसे डेवलप करना था। तो दीज आर द साइलेंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1948. नेक्स्ट 1956 वी विल हैव डिस्कशन इन नेक्स्ट वीडियो.
and 1991, which is also known as a new industrial policy. We will have a discussion in the third video of this lecture series from here onwards. Till then, thank you so much.